Hello everyone, good morning. Today we are going to start miscellaneous exercise of integration, that is chapter number 7. Means we are in the end of this chapter. पर ये एक्सरसाइज छोटी नहीं है, बड़ी है. 2-3 लेक्चर कम से कम इसमें जाएंगे. पर यहाँ पे कोई नई मेथड सीखने नहीं मिलेगी, सब कुछ रिवीजन होगा, ये आपको याद है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1/x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स. देखने में जाना पहचाना लगता हुआ सम, पर इतना जाना पहचाना नहीं है. किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे? तो देखो, क्यूब के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं कि डिनोमिनेटर में अगर क्यूब हो तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं. तो या तो सब्स्टिट्यूट करो या फिर कोई और रास्ता निकालो. ऑलरेडी वी हैव एक्स, सो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकेंगे. x into 1 minus x square dx means it will be like this. x इसके फैक्टर्स भी होंगे, so 1 minus x into 1 plus x dx. ये फॉर्म हो गया 1 upon linear non repeated factors. मतलब यहाँ पे फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, किसी की भी एक्सपोनेंट नहीं है. Also all x have one exponent, so मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व कर सकता हूँ. तो वो मेथड तो आपको आती भी है, तो चलो रिवाइज कर ले. हियर 1 अपॉन x into 1 minus x into 1 plus x, that is a upon x plus b upon 1 minus x plus c upon 1 plus x. Taking LCM, so 1 is equal to a. It has x, so इससे multiply होगा 1 minus x and 1 plus x. So we will write 1 minus x square plus b. We will write x into 1 plus x plus c. We will write x into 1 minus x, क्योंकि डिनो में 1 plus x था, यहाँ पे डिनो में 1 minus x था. Now putting different values of x, we will get, yes, चलो, for x equal to 0, for x equal to 0, LHS is 1, a into 1 minus 0 is 1, 0 into something is 0, 0 into something is 0, therefore value of a will be 1. For x is equal to 1, when we take x is equal to 1, LHS is 1, a into 1 minus 1 is 0, plus b into 1 into 1 plus 1 is 2, plus c into 0, it is c, sorry. Therefore 1 is equal to 2b, and therefore b is equal to 1 by 2. Now for x is equal to minus 1, it is one constant. Minus 1 square is 1, so it is 0. Plus b, minus 1 plus 1 will be 0. Plus c, 1 minus minus 1 will be 2. सिर्फ ये बचेगा, so 1 is equal to 2c. Therefore c equal to 1 by 2. Now putting all the values here. Now 1 upon x into 1 minus x into 1 plus x equal to a. What is a? 1. So 1 upon x plus b. b is 1 by 2. So 1 by 2 upon 1 minus x plus c. c is also 1 by 2. 1 by 2 upon 1 plus x. Now taking integration on both sides. So therefore integration 1 upon x into 1 minus x into 1 plus x dx equal to integration 1 upon x dx plus 1 by 2 बाहर आ गया, 1 upon 1 minus x dx
1/2 बार 1/1 plus x dx. Easily we can integrate. चलो, what is the integral of 1/x? Will be log mod x plus 1/2. इसका भी होगा log mod x means log mod 1 minus x, but divide answer by the coefficient of x, that is -1. linear की फॉर्मूला लगेगी. it is like ax plus b. a is -1, so a से डिवाइड करना है, मतलब -1 से डिवाइड करना है, प्लस 1/2 log mod 1 plus x plus c equal to log mod x minus 1/2 log mod 1 minus x plus 1/2 log mod 1 plus x plus c. After taking 1/2 common, log minus log, difference of log means division in log, so plus 1/2 आएगा, log mod it is 1 plus x. This is our Zingo answer. Now question number 2. Question number 2 is very easy, मैं आपको देने वाला हूँ. Question number 2 is integration 1 upon root x plus a plus root x plus b. 1 upon root x plus a plus root x plus b dx. देखो भाई, जब तक अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, लीनियर है और दो टर्म्स है, तो आपको कंपलसरी कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस बाय सर्ड, राइट. रेशनलाइज इट, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? आप सबको पता है, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से, सब कुछ आप जानते हो, राइट. सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए minus root x plus b. deno will be root x plus a plus root x plus b will be a plus b into a minus b. हिसाब से इसका स्क्वायर रूट गया, इसका स्क्वायर रूट गया dx. चलो एक्सपांड द डिनोमिनेटर, सो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन एक्सपांडिंग x plus a minus x minus b dx. x चल बसे, 1 upon a minus b constant, 1 upon बाहर आ गया, मैं इसे लिख रहा हूं x plus a raised to 1/2 minus x plus b raised to 1/2. raised to 1/2 लीनियर के हिसाब से आपको इंटीग्रेट करना है. whenever it is linear, assume it x, do the integration, मतलब आंसर will be 1 upon a minus b into, इसका इंटीग्रल होगा x plus a raised to 1/2 plus 1 means 3/2 upon 3/2 minus x plus b raised to 3/2 upon 3/2 plus c. then you can simplify it. इतना तो आपका काम बनता है, राइट. सो प्लीज राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 3. देखो 3, 4 एंड 5 तीनों क्वेश्चंस कुछ अलग से दिखेंगे आपको, मतलब कोई हिंट आपको नहीं मिलेगी. बुक वाले ने थर्ड में हिंट दे रखी है, फोर्थ एंड फिफ्थ में हमें कोई हिंट नहीं दी है. हमें खुद को ये फॉर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें ही इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट. चलो किस तरह से, तो मैं पहले यहाँ पे जो हिंट दिए वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं. सब्स्टिट्यूट x is equal to a by t means we are entering new variable t in place of x. So differentiating dx is a constant 1 upon t का डेरिवेटिव होगा minus 1 upon t square और t का dt. So it will be minus a upon t square dt.
now putting everywhere a by t in place of x, so equal to integration 1 upon, चलो in place of x write down a by t into a, x की प्लेस पे a by t माइनस x की प्लेस पे a by t, मतलब इसका स्क्वायर होगा, सो a स्क्वायर by t स्क्वायर रेज टू सॉरी dx that is minus a upon t square dt, राइट। चलो एक ए और एक के टी चल बसा, एक माइनस 1 बाई डी यहाँ पे बचा हुआ है, एंड वी हैव स्क्वायर रूट, सॉरी वी हैव स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब यहाँ से मैंने ए स्क्वायर लिया, सो ए आ गया बाहर, नाउ वी हैव इन द स्क्वायर रूट 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन टी डी टी। अब यहां से देखो मैं 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन टी आया बाहर, टी स्क्वायर लिया बट निकलेगा टी, सो दिस विल बी टी माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन टी डी टी। अब दोनों के डिनो डिनो चल बसे और माइनस 1 अपॉन ए बाहर आ गया, और ये फॉर्म बनेगा 1 अपॉन रूट टी माइनस 1, रूट मीन्स टी माइनस 1 रेज टू 1 बाई 2, और जैसे ही मैंने इसे न्यूमरेटर में लिया तो ये माइनस 1 बाई 2 हो गया, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल ए टी प्लस बी, उस हिसाब से इसका इंटीग्रल होगा माइनस 1 अपॉन ए टी माइनस 1 रेज टू माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, 2 जाएगा ऊपर, और t के बदले वापस आपको a बाई एक्स रख के इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर्म थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना, इतना इजी नहीं है। ये भी इस तरह से है एग्जैक्टली, देखो दिखने में तो गड़बड़िया लगता है, मैं यहां से x रेज़ टू 4 कॉमन ले रहा हूं, देखना x स्क्वायर इज ऑलरेडी वी हैव, जैसे ही x रेज़ टू 4 बाहर आएगा उसका फोर्थ रूट बनेगा x और क्यूब बनेगा x क्यूब, मीन्स दिस 1 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 4 रेज़ टू 3 बाई 4 dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जैसे ही मैंने x रेज़ टू 4 बाहर लिया, क्वेश्चन देख लेने दो मुझे, जैसे ही मैंने x रेज़ टू 4 बाहर लिया, ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 4 रेज़ टू 3 बाई 4 इंटू x रेज़ टू 5 dx। नाउ टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू 4 माइनस 4 अपॉन x रेज़ टू 5। तो देखो मैं क्या करूंगा, d बाई dx, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होने के बाद वजह से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और इसका होगा माइनस 4 अपॉन x रेज़ टू 5। सो ऑलरेडी वी हैव x रेज़ टू 5 इन डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ हमें माइनस 4 की जरूरत है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा सी माइनस 1 बाई 4 से डिवाइड किया, इससे मैं ले जा रहा हूं ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 4 रेज़ टू माइनस 3 बाई 4, माइनस 4 से डिवाइड किया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया। इसे भी मैंने ले लिया न्यूमरेटर में, दैट्स व्हाई द एक्सपोनेंट हो गई उसकी ऑपोजिट। नाउ सी, आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट, डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, आंसर भी आएगा, मेथड भी राइट है, कर भी सकते हो, बट इट इज अनदर मेथड। आफ्टर इग्नोरिंग द एक्सपोनेंट, डेरिवेटिव इज इन द मल्टीप्लिकेशन, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी एक्सपोनेंट एक इंक्रीज होगी, मीन्स रेज़ टू माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1 बाई 4, ये हो गया 1 प्लस
1/x रेज टू, मैंने 4 एलसीएम लिया, 4 1 जा 4 प्लस माइनस 3, सो 1/4, यहाँ पे भी आएगा 1/4 प्लस c, पूरा पूरा 1/4 चल बसा, सो दिस इज द आंसर, माइनस 1 प्लस 1/x रेज टू 4 रेज टू 1/4 प्लस c। क्लियर पॉइंट? कितना इजी है देखो। ये भी थोड़ा गड़बड़िया समय क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन इज 1/2 1/3 राइट है, चलो ओके। सो ये भी थोड़ी एक्सपोनेंट उसकी ऐसी ही है बेटा, सीधी सीधी कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ तो ट्रिक निकालनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे तो कॉमन निकल रहा है ना, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है। एंड बोथ हैव रेज टू 1/2 रेज टू 1/3, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 3? ऑब्वियस 6। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एक्सपोनेंट इंटीजर फॉर्म में आए, जैसे कि सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू t रेज टू 6। जैसे ही मैं यहाँ पे t रेज टू 6 डालूंगा, स्क्वायर रूट भी रिमूव हो जाएगा और क्यूब रूट भी रिमूव हो जाएगा। अब मैंने t रेज टू 6 डालना है मुझे, तो पूरा फॉर्म t में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर शुड बी इन t में, पूरा t में लाना है। सो डिफरेंशिएट इट, dx is equal to 6t raised to 5 dt by putting all the values 1 upon t raised to 6 raised to 1/2 plus t raised to 6 raised to 1/3 into 6t raised to 5 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो गया t क्यूब प्लस ये हो गया t स्क्वायर इंटू 6 t रेज टू 5 dt। t स्क्वायर कॉमन निकल के कटेगा, 6 आ गया बाहर, t स्क्वायर कट गया, t क्यूब बचा, t प्लस 1 dt। नाउ सी इट इज improper fractional function because exponent of numerator is greater, तो मुझे इसे प्रॉपर बनाना है, मतलब मैं तीनों को बनाऊंगा न्यूमरेटर में। किस तरह से? सी टी क्यूब तो है ही, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे 6 इंटू टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 minus 1 upon t plus 1 dt. Now divide it, so 6 integration t square minus t plus 1 minus 1 upon t plus 1 dt. Now tell me what is the integral of t square? t cube by 3, t square by 2, t log mod t। अब t के बदले आपको लिखना है यहाँ पे, in place of t you have to write x raised to 1/6, and after that you will get the answer. After that you will get the answer. Okay, so please write down this. Now see question number 6. Question number 6 है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वाला, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे तो आगे हो चुका है, पर आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शायद साइन कॉस वाले भी ऐसे सम आएंगे कि जिसमें आपको बनाना है एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। जैसे x माइनस a के बदले x प्लस a भी हो सकता है, x प्लस 2a भी हो सकता है, x माइनस 2a भी हो सकता है। मतलब जो कांस्टेंट फॉर्म है उसमें कुछ भी x प्लस 3, दे कैन गिव x प्लस 3, x माइनस 2, x प्लस 5 ऑल्सो, पर मेथड यही पकड़ के चलनी है कि मेक एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सी इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x तो उसके पास था ही, मैंने इस सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दिया, अपॉन साइन x माइनस dx। नाउ ऊपर यूज करो साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला, सो इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए
इंटू साइन ए होल अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब साइन एक्स माइनस ए से इसे डिवाइड करो, सो इक्वल टू यहाँ पे चल बसा, सिर्फ कॉस ए बचेगा, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन विल बी कॉट, सो कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। नाउ गिविंग सेपरेट इंटीग्रेशन, कॉस ए इज कांस्टेंट टर्म, कोई वेरिएबल ही नहीं है ना इसके पास, यहां पर भी ऐसा है ना, sin a is constant but it has variable cot x minus a dx, so equal to integral of 1 is x plus sin a, integral of cot is log mod sin divided by the coefficient of x, that is 1, so no need to divide, so this is our Zingo answer, sin a into log mod sin x minus a plus c। सब कुछ रिवीजन है, नया कुछ आने वाला नहीं है, हल्का सा चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर सम देखने में तो जोरदार लग रहा है, बट इफ यू हैव प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम इट विल बी सुरसुरिया सम। कैसे? बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस ऑफ लॉग। देखो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, ये सारे ऊपर चले जाएंगे विलन, तो नहीं तो e raised to log it will be x raised to 5 minus e raised to log x raised to 4 बटे में e raised to log x cube minus e raised to log x square dx। सुरसुरिया। अभी देखो कहीं भी log का बेस नहीं दिया, इसका मतलब ये हो रहा है कि all have same base and these are e, सबका बेस e है, तो ये दोनों बेस इक्वल है, तो ऊपर वाला आंसर होगा, मतलब x रेज़ टू 5 नीचे गिरा, x रेज़ टू 4 यहां से नीचे गिरा, यहां से x क्यूब गिरा और यहां से x स्क्वायर गिरा। देखो अब ऊपर से मैं x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं न्यूमरेटर में से, तो बचेगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx, पूरा पूरा चल बसा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा। चलो 9th क्वेश्चन, ये भी देखो तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन कॉस एंड साइन? बिल्कुल, दे आर रिलेटिव्स। व्हेन वी डिफरेंशिएट साइन इट विल गिव कॉस, व्हेन वी डिफरेंशिएट कॉस it will give sin, integral of sin is cos, cos का इंटीग्रल sin, सिर्फ माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो dx के मल्टीपल में cos है एंड cos is डेरिवेटिव ऑफ sin, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बन रही है। से सब्स्टिट्यूट sin x इक्वल टू t, फॉर्मूला बन जाएगी भाई, सब्स्टिट्यूट sin x is equal to t by differentiating its derivative cos x dx will be dt। everything is ready। चलो cos x dx is upon under root 4 minus t square, ready-made formula, ready-made formula, ready-made 2 square minus t square, it is like 1 upon under root a square minus x square, so answer is sin inverse t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू sin inverse of sin x by 2 plus c, which is our Zingo answer। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्म देखते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा लफड़ेबाज है, पर आसान हो जाएगा। कैसे? देखो ऊपर वाले में डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर से मैं फैक्टर्स करूंगा,
जैसे साइन रेज टू 4 एक्स माइनस कॉस रेज टू 4x इंटू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x बट्टे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब वापस यहाँ पे फैक्टर्स होंगे और यहाँ पे ये फॉर्म बन रहा है। देखो ये 11th की हमारी फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशन वापस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 माइनस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इफ यू नो, अदरवाइज सिंप्लीफाई अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चल बसा, इट इज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। सो बचा तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हमारे पास बची, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैंने माइनस कॉमन ले ली देन इट विल बी cos square x. It is formula of cos 2 theta, means we will write cos 2x। फॉर्मूला अगर याद है तो काम आसान हो गया। cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x। कितना आसान समझ है, राइट? सो प्लीज राइट डाउन। आज यहां तक रखते हैं भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।